Hello friends, this is CS with the Dua. I hope you all are doing good, and today we are going to talk about the Company Law 2018 June exam paper. June exam 2018 Company Law was a big bouncer for most of the students, and I'll be today talking about that paper. I have a certified copy of a CS executive student, and if you have given the June 18 exams and you have not cleared by Company Law paper, it was a big bouncer for you, or if you're giving in December 2018 and company law is a big bounce or a big mystery for you, then today this video is very important, because if you are a company, if you are a CS executive student or a professional student in a new syllabus or old syllabus, company law paper का जो standard है, it has been raised very drastically. Company law institute is demanding expert knowledge from you, and today we will be analyzing what student write in the exam. Student, I have a certified copy. What you write in the exam and you consider it absolutely fine, but what ICSI expects and what you should write. The June 2018 paper, if you are new to my channel, do like and subscribe, because these kind of videos I keep on making. And this is the certified copy of a student, certified copy 5th of June 2018 CS executive program company law paper, and the score is very good, because the student has scored 13 marks, 13 कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भी मार्क्स ऐसे आ चुके हैं, और अगर आपके भी मार्क्स ऐसे आए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, because you and me belongs to same category, right? Problem with this student is that this student was not giving the exam for the first time, and this student scored above 40 in December 2017, and above 40 students scoring 13 marks, 13 marks is totally a big disaster, because this kind of things you cannot come to know ki where are you lacking, right? This is the video in which I'll be trying to evaluate that where are you lacking. इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें. I'll be talking in English and Hindi both, because many student request that I should talk in English and many request in Hindi. तो दोनों में बात करेंगे. 13 marks, 13 marks came of this student, and after evaluation, after revaluation, the marks was increased to 18. उसके 18 marks हो गए हैं, लेकिन after only 18 marks is not that good. So, अब हम बात करेंगे पेपर के बारे में. पेपर ये है मेरे पास. You can download this question paper. This was a June 2018 question paper. You can download this very easily. If you don't have the link, I will give you the link in the description. Let's start with the first question attempted by the student, 2A first part. So what was the 2A first part? I'll be reading the question first and then doing the analysis. 2A first part. This is my 2A and this is my first part. I'll be reading the question first. We will be understanding the question, and then we will be, hum saath mein, you and me will both analysis that where the student is lacking, where you are lacking, and how you people can improve. Because the purpose of this video is that how you people can improve. The board of directors of Peculiar limited company है, proposes to recommend a final dividend, propose कर रही है to recommend a final dividend of 25 each to all the equity shares of the company. Okay, no issue. The company seeks your opinion on the following 4 parts. Company ने opinion आपसे opinion ले रहा है. Part number 1, 2, 3, 4 and 4 mark question है. तो मैं first part मेरा क्या है? The company was to deposit the dividend amount to cooperative bank. Company wants to deposit the dividend amount in cooperative bank. Board of directors limited company के propose कर रहे हैं recommend the final dividend. Okay, अंडरस्टूड द क्वेश्चन. हमारा डिविडेंड के चैप्टर से क्वेश्चन है. मेरे डिविडेंड के 123 टू 127 के सेक्शंस लगते हैं, प्लस मेरे रूल्स भी हैं. तो मैं इसमें स्टूडेंट ने क्या लिखा है, स्टूडेंट की पहले आप आंसर शीट पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्टूडेंट को सबसे पहली बात सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 करके लिख रहा है. नो इश्यू, यू कैन राइट दैट, नो प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारा जो बीओडी है एट द बोर्ड मीटिंग रिकमेंड करता है हमारा डिविडेंड, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाती हैं तो मेरा वो फाइनल डिविडेंड बन जाता है, और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद वो एजीएम में ओआर पास करने के बाद वो डिक्लेरेशन हो जाती है। तो बीओडी हैज अ पावर टू रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड, उसके बाद उसने कटिंग करी है, आफ्टर रिकमेंडेशन द मेंबर ऑफ द कंपनी फाइनल द डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही लिख रहा है। आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days, ये भी बिल्कुल सही है। Once declared, dividend should be paid within 30 days from the date of declaration. Dividend shall be transferred separate bank account in a schedule bank within 5 days. ये भी बिल्कुल सही लिखा उसने कि 5 दिन के अंदर अंदर declaration के बाद it should be deposited in a schedule bank. After declaration, if it is declared the same day, then is it mandatory to transfer in a schedule bank within 5 days? Answer is no, because हमारा अगर एकदम डिक्लेयर होने के बाद डिविडेंड पे हो गया तो फिर मुझे शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन ये है कि हाँ हमें करने की जरूरत है। डिविडेंड शैल बी पेड ओनली आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज भी बच्चे ने बताए हैं। प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, बिल्कुल ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिच रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डोनेशंस आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कंपनी वांट्स टू डिपॉजिट द डिविडेंड टू अ कोऑपरेटिव बैंक, इट कैन बी done if the cooperative bank comes under the list of schedule issued by RBI। ये गलत जवाब है दोस्त। क्यों गलत जवाब हो गया? यहाँ पे गलत बच्चे ने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है द कंपनी वांट्स टू डिपॉजिट द अमाउंट टू कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड शेड्यूल बैंक्स में फर्क है दोस्त। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 ये कहता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड हैज इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक within 5 days from the date of the declaration। scheduled बैंक वो है जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मेंटेन कर रहा है कैश रिजर्व रेशियो किसके पास? आरबीआई के पास। तो हमारा जो शेड्यूल बैंक है उसके कुछ कंडीशंस हैं, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज ग्रेटर देन 25 लाख। तो मेरी यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट बैंक आ जाता है, एचडीएफसी आ जाता है, मेरा ICICI, Axis Bank, all these banks are scheduled bank. But on the other hand, cooperative banks are different, which are regulated by NABARD, which do not have, which are not regulated by Reserve Bank of India. Every state is having its own cooperative bank. जैसे आप दिल्ली में है तो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, and those cooperative banks are not regulated by RBI. तो company wants to deposit the dividend amount to cooperative bank. यहाँ पे स्टूडेंट को लिखना चाहिए था नो द कंपनी कैन नॉट डिपॉजिट द डिविडेंड इन द कोऑपरेटिव बैंक बिकॉज एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 द कंपनीज एक्ट 2013 mandates to deposit the dividend declared within 5 days in only scheduled bank। तो यहाँ पे 0 मार्क्स है। स्टूडेंट को पता नहीं लगता है कि वो क्या लिख के आया है। ये उसने ऊपर प्रोविजन सही एक्सप्लेन करे हैं, प्रोविजन उसने इंट्रोडक्शन सही दिया है, सेक्शन का नाम नहीं दिया, लेकिन उसने यहाँ पे गलती कर दी। नेक्स्ट पार्ट, अगर आपका पार्ट वाइज क्वेश्चन है तो उसको पार्ट वाइज ही आंसर करना है। लाइक इट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो उसका पार्ट वाइज आंसर करेंगे। स्टूडेंट ठीक कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट उसने एक्सप्लेन किया। सेकंड पार्ट क्या है दोस्त? सेकंड पार्ट है द कंपनी इज अ डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रपोजेस टू रीपे इट्स ऑल डिपॉजिट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 10 days। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती दोस्त। 73 सेक्शन 74 प्रोहिबिट करता है। 123 124 में भी लिखा है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट परमिसिबल। तो स्टूडेंट लिख रहा है कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड इफ इट इज मेक द डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंटिल सच डिफॉल्ट इज रिमूव। ये ठीक है,
ये सही लिखा है उसने, यहाँ पे उसको मार्क्स मिलने चाहिए। थर्ड पार्ट क्या है दोस्त, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं। डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी कैपिटल रिजर्व के साथ के can a company declare dividend out of the capital reserve? I'm asking you. This is a kind of exam between you and me because it was a June exam and you are almost prepared for December exam. Can the company declare dividend out of the capital reserve? Yes or no? The answer is no, because company cannot pay dividend out of the capital reserve. Company can pay dividend out of free reserves that are freely available for the distribution of dividend. And capital reserve is not a free reserve, ladies and gentlemen. Capital reserve जो है वो free reserve नहीं है। जो मेरा P&L में पड़ा है, जनरल बैलेंस पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, वो मेरा फ्री रिजर्व है, लेकिन मेरा कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। मेरा DRR, CRR, ये सारे जो रिजर्व्स हैं स्पेसिफिकली जो बनते हैं वो मेरे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट क्या लिख रहा है, नो द डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व, इट्स फ्री रिजर्व व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द डिविडेंड, बट इन केस ऑफ inadequacy of profits company can use such reserve। चलो ये भी ठीक है, ठीक है। अभी तक ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, फर्स्ट पार्ट गलत था। तो मेरे दो पार्ट एक एक मार्क के हिसाब से अभी ठीक है, बच्चे का इंट्रोडक्शन भी ठीक था। तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आता हूं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट ने, द कंपनी वांट्स टू पे सच डिविडेंड थ्रू अ कैश काउंटर बाय द वे ऑफ कैश वाउचर। कंपनी पे करना चाहती है डिविडेंड को कैश वाउचर से। तो क्या वो कर सकती है, कैश दे सकती है डिविडेंड में? नहीं दे सकती, बिकॉज company can give dividend either by check or demand draft or by warrant or by electronic transfers। तो यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ने, shall be paid only in cash but it can also be paid by issuing demand draft। यहाँ पे स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिले होंगे या आधा मार्क्स मिला होगा, इसलिए स्टूडेंट को यहाँ पे टोटल में 2 मार्क्स मिले हैं। 2 मार्क्स स्टूडेंट को यहाँ पे आउट ऑफ 4 जेन्युइन मिले हैं दोस्त। यहाँ पे लगता है कि हमने गलती नहीं करी, लेकिन हमें यहाँ पे 2 मार्क्स हमें एग्जामिनर ने दिया है, जेन्युइन दिया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि चेकिंग जो है दिसंबर मेरी जून 2018 एग्जाम की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि चेकिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट एज कंपेयर जो स्टूडेंट मेरा एग्जीक्यूटिव का है वो अभी इतना मेच्योर नहीं है, राइट। इफ यू आर इन प्रोफेशनल यू आर that much mature, and this video can be watched for executive and professional both students। Next question है, perfect private limited wishes to appoint its secretary। secretary, what do you mean by secretary? A company secretary is called a secretary। सतीश साहब है secretary जो मेरे कंपनी के हैं perfect private limited, और उसको मैं internal auditor appoint करना चाहता हूँ। okay, internal auditor provision section number 138 plus rules, which rules? Rule 13 of company account rules 2014। दिमाग में आना चाहिए दोस्त, ये इंटरनल ऑडिटर लगता है इसके ऊपर। रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द कंपनी। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कंपनी कर सकती है या नहीं कर सकती वो बाद में देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट ने क्या लिखा है, बच्चे ने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 बच्चा पढ़ लिख के आया है। बच्चा जो मेरा है स्टूडेंट इज have prepared well, उसको सेक्शन नंबर्स तक याद है, बिल्कुल सही सेक्शन नंबर है। such classes of company as may be prescribed shall appoint auditor। shall appoint auditor, यहाँ पे गलती है दोस्त। which auditor? कंपनी किस कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हो दोस्त 138 में? statutory auditor, internal auditor, secretarial auditor, which auditor the student is talking about? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यहाँ पे तभी मार्क्स नहीं आते हैं। The company may prescribe shall appoint auditor। which auditor दोस्त? internal auditor। यहाँ पे बात लिखनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, एवरी लिस्टेड कंपनी, ओके लिस्टेड कंपनी ठीक है, एवरी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, चलो ये भी मान लिया। इफ द पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़, ये भी गलत लिख गया स्टूडेंट। स्टूडेंट का यहाँ पे टर्नओवर में पेड अप कैपिटल में जो लिमिट्स हैं वहां गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे 50 करोड़ स्टूडेंट लिख गया। ठीक है, टर्नओवर इज 200 करोड़, यहाँ पे 200 करोड़ लिख गया। टर्नओवर इज 200 करोड़ और अबव, ये ठीक है क्योंकि टर्नओवर 2 की लिमिट 200 करोड़ ही है। आउटस्टैंडिंग लोन्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द बैंक एक्सीड्स 50 करोड़, ये गलत है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें 100 करोड़ की लिमिट थी या 50 करोड़ की लिमिट थी। तो सर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मार्क्स मिलेंगे? स्टूडेंट पढ़ के आया है, स्टूडेंट मेरा नॉलेजेबल है, उसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे वो गलती कर गया, इसलिए यहाँ पे पूरा इसने एग्जामिनर ने काटा लगा दिया। एंड प्राइवेट लिमिटेड की भी उसने गलत लिमिट लिख दी। पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़, यहाँ पे पेड अप कैपिटल का है ही नहीं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लोन्स होना चाहिए था। आउटस्टैंडिंग लोन्स की मेरी 100 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर की मेरी 200 करोड़ की लिमिट है। ये सही है, ये गलत है। तो सर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको मार्क्स मिलेंगे? द कंपनी अंडर द अबव क्राइटेरिया दे शैल अपॉइंट द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर प्रोफेशनल। मेरे बच्चे ने यहाँ पे एक भी चीज डिस्कस नहीं करी। परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है, कंपनी कह रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवाइज द कंपनी, क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? क्वेश्चन खत्म कर दिया स्टूडेंट ने, आंसर खत्म कर दिया यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट हैज नॉट गिवन द आंसर दैट यस मिस्टर सतीश कैन बी अपॉइंटेड और कैन नॉट बी अपॉइंटेड। सर यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देखो कैसे करके आ रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जब मेरा केस लॉ का पेपर, केस लॉ क्वेश्चन आता है, तो मुझे क्वेश्चन को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस वीडियो, इफ यू हैव नॉट वॉच आई विल गिव द लिंक, यू शुड वॉच। LQAC, आपको सबसे पहले एप्लीकेबल लॉ के बारे में बताना है कि which sections are applicable, which rules are applicable, which secretarial standard is applicable, which accounting standard is applicable, which schedule number is applicable of Companies Act 2013। क्वेश्चन का मतलब है कि आप क्वेश्चन के फैक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस ऑफ facts of question with the applicable law, analysis of facts with law। और यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। अगर आप कंक्लूड ही नहीं करेंगे, अगर आप बताएंगे ही नहीं कि मिस्टर सतीश सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सर कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को और आपको क्यों मार्क्स देगा वो? सेक्रेटरी जो है मेरा अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एक्ट पर सेक्शन 138 बिल्कुल हो सकता है अगर बीओडी करना चाहे तो, क्योंकि जो एनी अदर प्रोफेशनल, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है। एंड दैट मींस कि जो सेक्रेटरी है, एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पे सर अगर आप LQAC फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तभी आपके एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। केस लॉ को आपको इस तरह प्रेजेंट करना है। बच्चा क्या कर रहा है, लॉ के बारे में लिख रहा है और वहीं खत्म कर रहा है, फैक्ट्स भी डिस्कस नहीं कर रहा, एनालिसिस भी नहीं कर रहा, और कंक्लूजन तो दूर की बात है दोस्त। और जो लॉ लिख रहा है उसमें भी मेरी लिमिट्स जो मेरी हैं, जो मेरी उसमें भी गलती है। मेरा इस बार का कंपनी लॉ का पेपर 132 मार्क्स का आया, जो डिस्क्रिप्टिव था 36 मार्क्स का, डिस्टिंग्विश भी थे 16 मार्क्स के, और मेरी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस 80 मार्क्स का है सर। 80 मार्क्स मेरा यहाँ पे खड़ा है, और मुझे अगर केस लॉ का आंसर ही नहीं करना आता और मुझे इसमें से 100 मार्क्स का आंसर करना है, 80 मार्क्स पेपर इज ऑफ केस लॉज। तो मेरी केस लॉ की जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे बहुत खतरनाक है। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मार्क्स इंस्टीट्यूट दे दे। इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स until and unless you are perfect in your answers। क्वांटिटी
does not matter much, but the quality of answers matters a lot. और presentation देखो बच्चे की यहाँ पे first, I always say that you should start your answer from a fresh page. यहाँ पे बच्चा यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड स्टार्ट कर रहा है. You should shift to the next page. क्या दिक्कत है दोस्त? You have given your examination fees, you have paid the fees, you have the right to take extra sheets. You खुला खुला लिखो यार, क्या दिक्कत है? यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप 2A लिखो, कितना अच्छा लगेगा. आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Nice Limited proposed to alter the liability clause of memorandum referring the provisions of Companies Act advised the company. Memorandum of जो liability clause का है, alter हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम देखते हैं. कौन सा सेक्शन लगेगा यहाँ पे? सेक्शन 13, सेक्शन 4 लगेगा मेरा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 13, मेरा ऑल्टरेशन ऑफ MOA प्लस मेरे कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स. मेरे लायबिलिटी क्लॉज ऑल्टर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. स्टूडेंट ने क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. स्टूडेंट को सेक्शंस याद नहीं आ रहे. कंपनी कैन ऑल्टर द लायबिलिटी क्लॉज इफ कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बिल्कुल ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सेक्शन 13 की ये बात लिख रहा है, सेक्शन 13 में ये बातें लिखी गई हैं. सेक्शन 13 कहता है कि कंपनी कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन और वो परमिशन ले ले. गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट जो लिखा है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हम लायबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं. लायबिलिटी क्लॉज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मेंबर्स. इट मींस द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल that the company can't receive. ये उसने liability का मतलब explain कर दिया. If the company is limited by guarantee, तो then the company can't demand more than the amount of the members. ये भी उसने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब एक्सप्लेन कर दिया और ऊपर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एक्सप्लेन कर दिया. तो उसको कितने नंबर मिलेंगे दोस्त? 1 मार्क मिला है 4 में से. बच्चा यहाँ पे डिप्रेस ये होता है कि मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं. 1 मार्क क्यों मिला है? क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि लायबिलिटी क्लॉज प्रपोज कर रही है कंपनी, क्या वो कर सकती है? कर सकती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कौन से रूल्स लगते हैं, कौन से, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है दोस्त. बच्चे की मेरी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लैकिंग है. स्टूडेंट इज हैविंग डेफिनेटली गुड नॉलेज अबाउट कंपनी लॉ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सबसे पहले उसको यहाँ पे लॉ के बारे में लिखना चाहिए था. मेरा सेक्शन यहाँ पे 13 है, प्लस मेरे रूल्स हैं, प्लस मेरा MOA का जो मेरा यहाँ पे सेक्शन लगता है सेक्शन 4 है. सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3. यहाँ पे मेरा यहाँ पे रूल जो मेरा 37 रूल है वो कन्वर्जन की बात करता है. कन्वर्जन फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड. इतने लॉज मेरे इस क्वेश्चन में लग रहे हैं. ये अभी मोटी मोटी बात है. फिर मैं फैक्ट्स की बात करूंगा कि ये मेरी कंपनी है, ये उसका नाम है, वो प्रपोज कर रही है कि वो मेरी ऑल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी कर सके. फिर मैं उसका एनालिसिस करता, फिर मैं कंक्लूड करता कि यस कंपनी कैन डू दैट, दिस दिस दिस, उसकी ये लायबिलिटी है. मेरा INC कौन सा? फॉर्म 27 जाएगा. कंपनी यहाँ पे क्या करेगी? ये सब इस रूल में लिखा है सर. कंपनी क्या करेगी? कंपनी यहाँ पे SR पास करेगी जनरल मीटिंग में. INC 27 फॉर्म होगा और नोटिस देगी कंपनी 2 न्यूज़पेपर्स में. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी. मेरी INC 27A की बात आएगी. सर अगर ये सब आप लिखते तो 4 में से 4 भी मिल सकते थे, 3.5 भी मिल सकते थे, 3 भी मिल सकते थे. लेकिन आप लिख के क्या आ रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं. आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स, थोड़े से और क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं. 2A का 4 फटाफट आगे बढ़ रहा हूं मैं. फैबुलस लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है, इज प्रपोजिंग इज फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न सबको पता है कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 92. इट्स अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल of 1 crore. The company seeks your advice. Who will sign the return on the behalf of the company? 2 मार्क्स के लिए ये है क्योंकि टोटल 4 मार्क्स हैं. And what are the requirements of the certification of annual return by the practicing company secretary? Practicing company secretary जो है annual return का मेरा कौन सा फॉर्म देता है? MGT 8 देता है.
कब देता है? जब मेरी एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ और टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, then it will be certified by the company secretary in practice in form number MGT 8। ये स्टूडेंट को लिखना चाहिए। अब देखते हैं, और साइन कौन करेगा? साइन मेरा सेक्शन 92 में लिखा है। MGT 7 मेरा एनुअल रिटर्न प्रिपेयर होती है। साइन मेरा या तो डायरेक्टर कर सकता है या मेरा कंपनी सेक्रेटरी करेगा, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करेगा। ये मेरा सेक्शन 92 की बात लिख ली। स्टूडेंट क्या लिख रहा है? एवरी कंपनी शेल फाइल एनुअल रिटर्न विद द पीरियड ऑफ ROC विद इन 60 डेज ऑफ AGM। बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट। स्टूडेंट इज वेरी नॉलेजेबल, स्टूडेंट की नॉलेज है, that is why he is writing all this। annual return shall be filed in form MGT 7, बिल्कुल सही है। Following are the particulars of the annual return, name of the director KMP। उसने particulars भी बता दिए, स्टूडेंट को ज्यादा पता है, वो शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप शो ऑफ कर सकते हैं अपनी नॉलेज का, लेकिन जो बात क्वेश्चन में पूछी है उसका आंसर जब तक आप नहीं देंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्त, मार्क्स नहीं मिलेंगे। शो ऑफ करते रह जाओगे आप। नेचर ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है। एनुअल रिटर्न शैल बी साइन, यहाँ पे एनुअल रिटर्न साइन कौन करना चाहिए? साइन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। उसने पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन PCS। PCS नहीं लिखना चाहिए, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। शॉर्ट फॉर्म्स आपको अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम शीट में। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। स्टूडेंट ने यहाँ गलती करी है। Section 92 says annual return should be signed by a director। A director means any director, right? तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे, एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, वो बात ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक नंबर तो कट गया। इन केस ऑफ OPC एंड स्मॉल कंपनी, OPC स्मॉल कंपनी की बात भी कर गया, चलो ठीक है। यहाँ पे भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, एनी डायरेक्टर है, एंड कंपनी सेक्रेटरी, देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन बाय डायरेक्टर। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मार्क मिला है इसको। क्यों मिला है? क्योंकि इसने यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर में गलती कर दी। और सेकेंड पार्ट जो है उसके बारे में, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसके बारे में स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे खत्म कर रहा है कंपनी प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटी टू द कंपनी सेक्रेटरी लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स, CS शैल इंश्योर दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद एप्लीकेबल लॉज। ये उसने जनरल नॉलेज यहाँ पे थेपी है और आंसर खत्म कर दिया है। उसने यहाँ पे इस पार्ट का तो आंसर ही नहीं दिया, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, की जब उसकी लिस्टेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, देन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस will issue the annual return certification in form MGT 8। ये बात लिखनी चाहिए थी दोस्त। यहाँ पे इसने साइनिंग में भी गलती कर दी और सेकंड पार्ट तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सिर्फ बेसिक नॉलेज थी उसको एनुअल रिटर्न की। और यहाँ पे पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, लिमिटेड कंपनी है, तो ये भी लिख सकते थे कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का MGT 8 नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है। ये एनालिसिस होता है दोस्त, एनालिसिस करके आपको लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। एंड दैट इज द रीजन कि स्टूडेंट को नॉलेज है लेकिन उसको 4 में से 1 मार्क मिल रहा है, 1 मार्क। कैन यू इमेजिन? एंड तभी जब आप एग्जाम करके आते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 40, 45, 50 एंड यू आर गेटिंग 15 से 18 मार्क्स। दैट इज अ शॉकिंग फॉर एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं 2A। ये यहाँ पे स्टूडेंट ने फालतू में ड्रामे करे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का A पार्ट स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन है CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। स्टूडेंट क्या लिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Because I cannot analyze all the questions of June 18 क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं स्टूडेंट ने जहां गलती करी है, जो गलती आप ना करो, स्टूडेंट रिपीट ना करे, that is the mistakes and questions I am talking about, right? I am not having guidelines answers, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूट का लेवल यहाँ है
और आप लिख के आ रहे हो यहाँ, तो दैट इज द रीजन कि आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। और आप गलती कहाँ कर रहे हो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। RS Limited has incurred 5 lakh for the fulfillment of Labor Law, Land Acquisition Act and Food Safety Standard Act in the month of May 18। May 18 में एक लिमिटेड कंपनी है जिसने 5 लाख रुपए लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में लगा दिए है। द कंपनी हैज अकाउंटेड 5 लाख का CSR एक्सपेंडिचर, और वो जो 5 लाख रुपीस था उसने CSR में डाल दिया। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर द कंपनी हैज राइटली अकाउंटेड विद द CSR। CSR का मेरा सेक्शन है 135, और मुझे यहाँ पे केस लॉ दिख रहा है, तो मुझे केस लॉ में कैसे प्रेजेंट करना है, LQAC। पहले मैं 135 की बात करूंगा, उसकी सारी लिमिट्स बताऊंगा, CSR कमिटी बताऊंगा, 2% की बात करूंगा, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स, उसकी बात करूंगा। फिर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, फैक्ट्स की बात करूंगा। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है लेबर लॉ लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपनी RS लिमिटेड ने ऐसे ऐसे 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर कर दिया है, एंड दैट कंपनी इज स्पेंडिंग 5 लाख रुपीस एंड क्लेमिंग इट एज CSR एक्सपेंडिचर। और उसके बाद में उसका एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में कंक्लूजन पे देखूंगा और बताऊंगा वेदर कंपनी हैज राइटली अकाउंटेड और नॉट। राइट, ये मेरा तरीका है। और स्टूडेंट क्या लिख के आ रहा है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे 4 में से 3 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन वो लिख के क्या आ रहा है, एज पर सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर स्टूडेंट को याद है, मेरा स्टूडेंट होशियार है, होनहार है, पढ़ लिख के आया है दोस्त, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन नहीं आती है। 135 द कंपनीज एक्ट, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 500 करोड़ है, बिल्कुल सही है। टर्नओवर इज 1000 करोड़, बिल्कुल सही है। और नेट प्रॉफिट इज 5 करोड़, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कंपनी अंडर द अबव क्राइटेरिया हैव द कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, CSR कमिटी लिखना चाहिए था, कॉर्पोरेट सोशल कमिटी लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन चलो ठीक है। इन CSR कंपनी देयर विल बी, इन CSR कंपनी देयर विल बी अ चेयरमैन। CSR कंपनी, कंपनी कौन सी भाई, CSR कंपनी, CSR कमिटी, कमिटी की बात है दोस्त, यहाँ पे स्टूडेंट ने कंपनी लिख दिया। मिस्टेक्स देखो आप क्या कर रहे हो सर, पूरा मतलब बदल जाता है। और लॉ का पेपर है, लॉ में एक मतलब से पूरी कहानी बदल जाती है। CSR कमिटी लिखना चाहिए था। दे विल बी चेयरमैन, ठीक है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच दे विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टूडेंट को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है 135 की, लेकिन CSR कमिटी लिखना चाहिए था। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात भी उसने लिख दी, ये भी बिल्कुल ठीक है, एग्जेम्पशन है। CSR committee formulate the policy as per the activities given schedule 7। schedule 7 gives the activities for CSR activities। CSR में जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो वो कहाँ गई है, कहाँ लिखी हुई है, शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट को नॉलेज पूरी है कि उसको शेड्यूल 7 में भी एप्लीकेबिलिटी है। एवरी कंपनी इन दोज सेक्शन इज एप्लीकेबल शैल ट्रांसफर द अमाउंट 2%, ठीक है, 2%, ध्यान से, लॉ कहता है मेरा 135 का 2% ट्रांसफर करेंगे ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स of the company during 3 immediately preceding financial years। 3 immediately preceding financial years 135 कहता है। स्टूडेंट क्या लिख रहा है, स्टूडेंट थिंक that I am 100% right। every company in this section is applicable shall transfer the amount 2%, बिल्कुल सही है, of the net average profit of last year per CSR for CSR purpose। लास्ट ईयर नहीं है दोस्त, फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स है। पूरी कहानी बदल दी उसने, 2% उसको याद है, सब कुछ याद है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं है। लास्ट ईयर की जगह क्या है, ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये दोस्त पूरी बात गलत हो गई। शेड्यूल 7 इनमस्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, उसने शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज भी लिख दी, बहुत ज्ञानी बच्चा है। टू स्टार्वेशन, पॉवर्टी, ये प्रमोट एजुकेशन फुलफिलमेंट। मेरे यहाँ पे नंबर कितने आए हैं, 0 नंबर, 0 आए हैं दोस्त। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर खुंदक में है, उसको कम से कम 1 मार्क देना चाहिए था, 1 मार्क बनता है। और मेरे जो रिवैल्यूएशन में 5 मार्क्स बड़े हैं,
हो सकता है इस क्वेश्चन में उसने 1 या 2 मार्क्स बढ़ाए हैं, क्योंकि उसका 135 की लिमिट पूरी ठीक है। उसने मेरी नेटवर्थ की बात, टर्नओवर की बात, यहाँ पे सीएसआर कमिटी की बात लिखी, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को चेक करता तो मैं 1 मार्क देता 4 में से, और स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर खत्म कर दिया। स्टूडेंट की गलती क्या है दोस्त? स्टूडेंट को सब पता है। स्टूडेंट ने मेरे सेक्शन 135 का रेफरेंस भी दिया, शेड्यूल 7 का रेफरेंस भी उसने दिया, 135 की उसने लिमिट्स की भी बात करी, सीएसआर कमिटी की भी बात करी, उसने 2% की जो मेरी लिमिट है, जो मेरी एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसकी भी बात करी। लेकिन 2% ऑफ लास्ट ईयर वो कह गया, वो 3 इयर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है। 135 उसको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसको 0 मार्क्स मिले हैं, राइट। 1 मार्क्स बनते हैं, और आई थिंक जो उसने रिवैल्यूएशन में 5 मार्क्स बढ़ाए हैं, 13+5 किया है, 1 मार्क यहाँ बढ़ा है। अगर स्टूडेंट मेरा यहाँ पे 4 पैरास में आंसर देता, LQAC मेरा एप्लीकेबल लॉ स्टूडेंट ने लिखा है 135, बिल्कुल सही लिखा है। शेड्यूल 7 लिखा है, इसके सर 1 नंबर है एप्लीकेबल लॉ के। जो स्टूडेंट कह रहा है ना मैंने 1 पेज लिख दिया, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, टोटल 4 नंबर है अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। एप्लीकेबल लॉ में उसने सारी लिमिट्स भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया, 1 नंबर उसको मिलना चाहिए था। क्वेश्चन की तो उसने बात ही नहीं करी दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है उसको तो एग्जामिनर को बताया ही नहीं कि मेरी कंपनी है RS लिमिटेड। 5 लाख उसने कहाँ ट्रांसफर किया? लेबर लॉ लैंड एक्विजिशन एक्ट में उसने 5 लाख रुपीज स्पेंड किया, और उसने 5 लाख रुपीज CSR एक्सपेंडिचर मान लिया। उसने तो कुछ बात ही नहीं करी दोस्त, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एनालिसिस जो मेरे यहाँ पे 5 लाख रुपीज जो स्पेंड किया, 5 लाख रुपीज स्पेंड किया, और ये जो मेरे 135 की जो एक्टिविटीज थी, जो मेरी शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज थी, क्या वो वाली जो एक्टिविटीज थी क्या उसमें शेड्यूल 7 में लिखी है? अगर लिखी है तो वो CSR एक्सपेंडिचर ठीक है, नहीं लिखी तो सर यहाँ पे कंक्लूजन में यस और नो तो बताता कि उसने सही किया या गलत किया। यहाँ पे कंपनी क्वेश्चन कह रहा है whether the company has rightly accounted for the amount, rightly account किया है या नहीं किया है। स्टूडेंट को कंसर्न ही नहीं है, मैं क्यों बताऊं, मैं तो 135 जानता हूं, 135 टेप के आऊंगा और मुझे 4 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं मिलेंगे दोस्त, ऐसा नहीं होता। कंपनी हैज नॉट राइटली अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ CSR, क्योंकि जो लैंड लेबर लॉ लैंड एक्विजिशन एक्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, जो मेरा मई 18 में 5 लाख रुपीज जो स्पेंड किया है, वो मेरा शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, एंड दैट 5 लाख रुपीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्मेट में आंसर करे तो मैं बता रहा हूँ 3 आउट ऑफ 4 तो मिल सकते हैं। 4 आउट ऑफ 4 तब मिलेंगे जब कोई भी मिस्टेक नहीं है आपके आंसर में। टॉप क्लास आंसर है, टू द पॉइंट, नो एक्स्ट्रा फट्टे, नो एक्स्ट्रा गपशप, नो एक्स्ट्रा। 3 आउट ऑफ 4 आपको यहाँ मिलने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक दो क्वेश्चंस और आपको बताता हूँ। एक दो क्वेश्चंस और क्या है दोस्त, यहाँ पे सी पार्ट अगर मैं देखूं, हु विल अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, BOD और शेयर होल्डर्स, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स सेक्रेटरियल ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी पार्ट अगर मैं देखूं, इसमें स्टूडेंट ने मेरे क्या लिखा है, स्टूडेंट ने एज पर द सेक्शन 203 मेरा KMP का सेक्शन है। स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहा है 203 of the Companies Act, every listed company and the following classes of company may prescribe shall conduct secretarial audit. Secretarial audit का मेरा सेक्शन 204 है, यहाँ पे बच्चे ने 203 लिखा है। चलो वो भी छोड़ो, आसपास है, मान गए सर। Secretarial audit in the manner let down for the purpose of following companies, इसकी पेड अप कैपिटल मेरी 50 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर मेरी 250 करोड़ रुपया, बिल्कुल सही लिखा है, टर्नओवर्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। मेरा क्वेश्चन क्या मांग रहा है,
बिल्कुल सही लिखा है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 250 करोड़ और मोर। 204 की बात लिख रहा है स्टूडेंट। सेक्रेटरियल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिल्कुल सही लिखा है। हु शैल प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन द सेक्रेटरियल ऑडिट इन द फॉर्म MRN3। फॉर्म नंबर मेरा MR3 है। MRN3 कोई फॉर्म नंबर नहीं होता। यहाँ पे फॉर्म नंबर में गलती है, छोटी सी गलती है। स्टूडेंट को पता है MRN है लेकिन MR3 फॉर्म होता है, ठीक है। आप इग्नोर कर सकते हैं, हम इस छोटी बात को इग्नोर करके चलते हैं। CS इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन द बोर्ड मीटिंग एंड अप्रूवल द अपॉइंटमेंट इन द जनरल मीटिंग। CS कौन सा CS? यहाँ पे खाली CS नहीं लिखना चाहिए था, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस लिखना चाहिए था, या सेक्रेटरियल ऑडिटर लिखना चाहिए था। सर ये छोटी छोटी बातें हैं, स्टूडेंट की नॉलेज पूरी है लेकिन छोटी बात है। आपकी यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत इफेक्ट करती है। CS विद CS इज एन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विच इज अ KMP, या CS इज सेक्रेटरियल ऑडिटर विच इज बेस्ड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। यहाँ पे तो डबल मीनिंग निकल गया ना। सेक्रेटरियल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक लगता है। या CS इन प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक लगता है। खाली CS वो भी शॉर्ट फॉर्म में, तो सर गलत बात है, यहाँ पे स्टूडेंट ने गलती करी है। ड्यूटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की ड्यूटी यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स सेक्रेटरियल ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिटर का बोर्ड की तरफ क्या ड्यूटी है और ऑडिट रिपोर्ट की तरफ क्या है, दोनों चीजें पूछ रहा है। ड्यूटी ऑफ द बोर्ड शैल फैसिलिटेट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक नंबर इसके लिए है। For ensuring the compliance, board shall disclose the qualification and observation given by CS with CS company secretary in practice or practicing company secretary or secretarial auditor to be appointed। यहाँ पे खाली CS नहीं जमता दोस्त। यहाँ पे 205 का सेक्शन पे यहाँ पे एडिशनली रेफर कर रहा है, डील्स विद द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे CS shall ensure due diligence necessary minutes of the meeting, ये और अपने आप उसने फालतू में ऐड किया है, ये वैसे रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म होने का मतलब क्या है, खत्म कर दिया आंसर, लेकिन यहाँ पे मेरी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके बारे में उसने कोई बात नहीं करी है। और मेरी यहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिट कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर, वो बता दिया। एंड ड्यूटी के बारे में भी उसने थोड़ा बहुत बताया। तो मैं यहाँ पे अगर एग्जामिनर हूँ, उसने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ड्यूटी का कुछ भी बात नहीं करी, और यहाँ पे छोटी मोटी उसने गलतियां भी करी। CS लिख दिया, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं लिखा, CS इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। फॉर्म का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो सर मैं यहाँ पे 4 में से कितने मार्क्स दूंगा आपको? 2 मार्क्स दूंगा, बिल्कुल सही मार्क्स दिए हुए हैं। इससे ज्यादा मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने ऑडिट रिपोर्ट की क्या जो ड्यूटी है उसके बारे में बात नहीं करी। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आपके बारे में बात कर सकते थे, सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 की बात कर सकते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड एक्सप्लेन द फुल क्वालिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स मेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन द ऑडिट रिपोर्ट या इन द बोर्ड रिपोर्ट, राइट। तो जो मेरी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस रिमार्क्स देगा, इवैल्यूएशन देगा, वो मेरा जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी जाएगा, BOD रिपोर्ट में जाएगा। ये 133 सबसेक्शन 3 कहता है। मेरी असिस्टेंस यहाँ पे बोर्ड देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, ये स्टूडेंट ने लिख दिया है। तो सर यहाँ पे रूल्स की बात भी नहीं, रूल्स की बात भी आप कर सकते थे, रूल 8 ऑफ कंपनीज में की बात हो सकती थी, 204। तो सर 4 में से आप 2 से 2.5 मार्क्स से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, आपकी टू द पॉइंट क्लैरिटी वाला आंसर नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरियल ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड, ये वर्ड्स की जगह स्टूडेंट अगर खाली CS लिख रहा है तो सर ये तो गलत बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें आप ना करें, क्योंकि यही बात आपको हेल्प करेगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन क्योंकि मेरा भी कुछ लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट ने किया है, 5 का देख लेते हैं एक बार, एंड उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, बिकॉज वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाती है ऐसे। यहाँ पे एक बात है, चलो 5th का
ए पार्ट में 8 मार्क क्वेश्चन की भी एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक 4 मार्क क्वेश्चन की बात करी है। 8 मार्क क्वेश्चन है, रीड करते हैं। स्पेक्टाकुलर लिमिटेड वांट्स टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी में एक लिमिटेड कंपनी है, एप्लीकेशन देना चाहती है फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम। नेम रिमूवल की एप्लीकेशन देना चाहती है। सेक्शन बी नंबर भी बता दिया, 248 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट फ्रॉम रजिस्टर। इट इज अंडरस्टूड द एप्लीकेशन शैल बी accompanied by an affidavit। एफिडेविट जाता है एप्लीकेशन के साथ। क्वेश्चन बता रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता। बाय एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर है हर कंपनी का, all the directors will give an affidavit along with the application to the ROC for the removal of its name। 248 कहता है, बिल्कुल सही कहता है। यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की तरह डील कर रहे हैं। द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू, कंपनी हमारे पास आई है। यू हैड कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू ड्राफ्ट सच एफिडेविट। कंपनी हमारे पास आई है टू ड्राफ्ट सच एफिडेविट, हेल्प द कंपनी। Company has come to a practicing company secretary, that is you, to draft the affidavit which is required to be annexed with application by every director of the company। सर क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझने की बहुत जरूरत है। आ कंपनी हैज अप्रोच्ड अस टू ड्राफ्ट द एफिडेविट। ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन बन गया है। एफिडेविट को ड्राफ्ट करने की हमें बताना है कि कौन सा एफिडेविट ड्राफ्ट करेंगे, हेल्प द कंपनी। हमें तो एफिडेविट ड्राफ्ट करना है जो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को साथ एप्लीकेशन में लगेगा। स्टूडेंट को नॉलेज पूरी है, लेकिन स्टूडेंट लिख के क्या आता है, फिफ्थ का ए, ये मैं पढ़वाता हूँ आपको। सेक्शन 248 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, company may give application for the removal of the name of the company from the register of the members। in the section provision deals with the two-man। स्टूडेंट को पूरी नॉलेज है सर, उसने वॉलंटरी रिमूवल की बात करी। इफ द ओपिनियन ऑफ द आरओसी डज नॉट कैरी बिजनेस फॉर द ईयर फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसने ये भी बात करी कि सर 1 साल के अंदर आप इनकॉर्पोरेशन में बिजनेस नहीं करते, या फेल्स टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर दीज मेनी ईयर्स। उसने सारी बातें कर दी 248 की। कंपनी वॉलंटरीली वांट्स टू रिमूव, उसने ये भी सारी चर्चा कर दी। इन एफिडेविट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब, यहां से उसने थोड़ा बहुत एफिडेविट की बात शुरू करी है। लेकिन सर जब मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू ड्राफ्ट सच एफिडेविट, हेल्प द कंपनी, तो मेरे को तो सर सिर्फ एफिडेविट की बात करनी है जो मेरा एप्लीकेशन के साथ जा रहा है। कंपनी एप्लीकेशन फाइल करती है आरओसी में STK2 फॉर्म में। STK2 फॉर्म जब जाता है उसके साथ एफिडेविट जाता है। एफिडेविट इज गिवन बाय ऑल द डायरेक्टर्स, वो STK4 होता है, एंड उसके साथ फीस जाती है 5000 रुपीज। तो जो STK4 है जो मेरी एप्लीकेशन के साथ जा रहा है, उसकी मुझे ड्राफ्टिंग की बात करनी है। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग की अभी तक कोई बात ही नहीं है। एफिडेविट को मुझे ड्राफ्ट करना, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन था और स्टूडेंट ने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, तो सर उसको यहाँ पे मार्क्स कितने मिले हैं। एफिडेविट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब, एफिडेविट की वो बात कर रहा है, उसको नॉलेज है। डायरेक्टर सेटिस्फाई हिमसेल्फ वेदर द कंपनी हैज पेड ऑल द लायबिलिटी एंड डेब्ट्स, की सर सारी लायबिलिटीज कंपनी दे चुकी है। डायरेक्टर इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड टू द आरओसी, ये भी बात ठीक है। द कंपनी एक्सेप्टेड द डिपॉजिट्स, यहाँ पे उसने बहुत बातें कर दी सर, लेकिन उसको मार्क्स कितने मिले हैं, 0। दोस्त यही दिक्कत है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। यही बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा सेक्शन नंबर 248 सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है, इसके साथ मेरा यहाँ पे रूल कौन सा लगता है, रूल 4 ऑफ कंपनी रिमूवल ऑफ नेम्स रूल्स 2016, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वेयर यू पीपल आर लैकिंग। ये नॉलेजेबल स्टूडेंट है, इसको सब आता है, लेकिन उसको पता नहीं है लिखना कैसे है। ये मेरा सेक्शन क्या कहता है कि कंपनी जो है मेरी एप्लीकेशन फाइल करेगी फॉर रिमूवल कौन सा फॉर्म होगा, STK2 होगा, आरओसी पे जाएगा, प्लस मैं इसमें फीस मेरी 5000 रुपए है, प्लस मैं इसके साथ एफिडेविट लगाऊंगा जिसकी बात मेरा क्वेश्चन कर रहा है। एफिडेविट
एवरी डायरेक्टर देगा, मेरा एवरी डायरेक्टर विल गिव द एफिडेविट इन फॉर्म STK4। ये एफिडेविट को मुझे ड्राफ्ट करने की बात मेरा क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं इसको ड्राफ्ट कैसे करता? मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता फॉर्म नंबर STK4, यहाँ पे लिखता टू बी गिवन बाय एवरी डायरेक्टर। सर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है, और ड्राफ्ट अगर आप करके नहीं आओगे, STK4 का एक फॉर्मेट है दैट इज प्रिस्क्राइब, तो सर वही चीज इंस्टीट्यूट मांगेगा तभी मार्क्स देगा। जब आप फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब है STK4 में जो एफिडेविट का, वही चीज लिख के आनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आई डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर हूं ऑफ दिस कंपनी, जो कंपनी का नाम है। इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुई? इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट। अंडर विच एक्ट? मेरी कंपनी एक्ट 2013 या 1956 अगर उससे पहले है। हैविंग, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का है दिस। मेरा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? सिन बताऊंगा मैं, और मैं लिखूंगा डू सॉलेमली अफर्म, मैं सॉलेमली एग्री करता हूं, अफर्म करता हूं। एंड स्टेट एज अंडर, फिर मैं पॉइंट्स बना के आगे लिखूंगा कि आई एम अ डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर हूं साहब, मैं अपनी असेंट देता हूं, मेरा डिन नंबर ये है, मेरा परमानेंट एड्रेस। मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये फेयर आंसर नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्त कि ऐसे आपको प्रेजेंट करना था। मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? ये है। मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को ड्यूली एनक्लोज कर रहा हूं, और मैं सर्टिफाई करा रहा हूं। किससे सर्टिफाई करा रहा हूं? प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल कौन है? का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तो मेरा सर यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई अफर्म दैट, मैं अफर्म करता हूं, मैं अफर्म करता हूं। फिर पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट्स बना के क्या मैं लिखूंगा? जो मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि कंफर्म करता है डायरेक्टर की, सेटिस्फाई है कि कंपनी हैज पेड ऑल द लायबिलिटीज, ये पॉइंट एक बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टर इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न मेरी हो चुकी है, ये पॉइंट बन जाएगा। जो मेरे पॉइंट्स STK4 में मेरी एफिडेविट में लगते हैं, मेरी यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, डिपॉजिट्स का पॉइंट लग जाएगा। मैं ये लिख सकता हूँ कि कंपनी की कोई भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, कोई मेरी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है, नो इंक्वायरी, नो इंस्पेक्शन, नथिंग इज। और मैं सिर्फ बहुत पॉइंट्स बना सकता हूँ, और लास्ट में आई solemnly एग्री that the information given is true and correct and best of my knowledge, नीचे साइन करके अगर मैं उसको एफिडेविट फॉर्मेट में प्रेजेंट करता, तो सर 8 में से 6 भी मिल सकते थे, 7 भी मिल सकते थे, नहीं तो 5 मार्क्स तो कंफर्म थे सर। स्टूडेंट के पास पूरी नॉलेज है, आफ्टर प्रिपेयरिंग एफिडेविट इट शैल बी फाइल्ड विद ROC, सब कुछ उसको आता है, लेकिन सर एग्जामिनर खुंदक में बैठा है, उसको वही चीज चाहिए जो इंस्टीट्यूट चाहता है, लेकिन उसको जब वो नहीं मिलती, तो सर वो अंडा देने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू गिव यू अ बिग जीरो, राइट। एक क्वेश्चन लास्ट और करूंगा मैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकता। आई हैव सम लिमिटेशंस एंड आई होप जो मैं मैसेज देना चाहता था यहाँ पे मिल गया। यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि सर एग्जामिनर ने किसी भी क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स दिए हैं या वो खुंदक में ही बैठा है? मार्क्स दिए हैं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स हैं। मैं थर्ड का आपको बी पार्ट डिस्कस करा रहा हूँ, बायबैक ऑफ शेयर्स का। एक इसको रीड करते हैं, 4 मार्क क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज गॉट 3 मार्क्स इन दिस, हाईएस्ट मार्क्स इन दिस पेपर 3 आउट ऑफ 4। स्टूडेंट ने टू द पॉइंट आंसर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्या इसका मतलब है? एक लिमिटेड कंपनी है, वांट्स टू परचेज 1 लाख शेयर्स 10 ईच फ्रॉम द आउट ऑफ द फॉलोइंग मेरा सेक्शन 68 लगता है। अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बायबैक ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। ये क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं, क्यों मिले हैं अभी बात करते हैं। 3 सबसेक्शन डी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ, नहीं ये नहीं है, ये वाला है 3 सबसेक्शन बी, इसकी बात करते हैं। सेक्शन 68 स्टूडेंट को सेक्शन नंबर याद है, डील्स विद द बायबैक ऑफ कंपनीज।
उसने यहाँ पे लिख दिया मीनिंग ऑफ बायबैक। बायबैक होता क्या है? बायबैक मीन्स टू परचेज बैक द सिक्योरिटीज ऑफ इट्स ओन इशूड। कंपनी कैन बायबैक आउट ऑफ द फॉलोइंग किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक हो सकता है, सेक्शन 68 की बात कर रहा है, और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स या फ्री रिजर्व्स। बिल्कुल सही लिखा है, तीन ही चीजें होती हैं जिससे बायबैक हो सकती है, फ्री रिजर्व्स, proceeds of issue of shares या securities premium according to the question। ये देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे इतनी बात कर दी, ये लॉ की बात कर दी। ये जो पैराग्राफ है एप्लीकेबल लॉ के बारे में बता दिया कि सेक्शन 68 है साहब, ये ऐसे ऐसे बायबैक हो सकता है। बायबैक का ये मतलब है बायबैक हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन LQAC, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा है स्टूडेंट ने यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा, कंपनी का नाम लिखा, कह रहा है वांट्स टू परचेज इट्स ओन 1.1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी ये करना चाहती है, क्वेश्चन में स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। LQAC, पहले एप्लीकेबल लॉ देन फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारा है। देखो अनसिक्योर्ड लोन, कंपनी का नाम लिखा, wants to purchase its own shares, इतने लोन्स है, इतने बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन है, इतना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और मेरी यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अनसिक्योर्ड लोन इतने हैं, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इतना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना है। मेरा फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर गया। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस कर रहा है स्टूडेंट, देखो ए एनालिसिस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ company can only buy back its shares out of the securities premium account of 3 लाख। तो मेरा जो securities premium है यहाँ पे जो 3 लाख का 4 लाख का जितने का भी है उससे ही उतना बायबैक हो सकता है। मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स का उसने मतलब भी बता दिया, जो मेरे फ्रीली अवेलेबल है, और यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म किया। तो यार ये जो तरीका है इसमें स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिले हुए हैं। टू द पॉइंट आंसर, no extra length, nothing unnecessary, to the point answer, first explaining the applicable law, then analyzing the facts of the question, then analyzing and then giving the conclusion। अगर यहाँ पे 3 out of 4 आ सकते हैं तो सर एग्जाम में मार्क्स आ सकते हैं, राइट। आई होप आई एम क्लियर, एंड यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। एंड दिस वाज सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव एनालाइज्ड, क्योंकि स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, एंड मोस्टली यही गलतियां हैं और भी क्वेश्चंस में। तो आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज वीडियो इज ऑलमोस्ट अबाउट 1 hour नाउ, एंड आई होप इससे आपको फायदा मिला होगा। यू पीपल हैव लर्न समथिंग दैट वेयर यू आर लैकिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू कमिट दीज मिस्टेक्स, सो दैट you are yourself responsible for your mistakes and you are not complaining the institute कि sir marks नहीं आते हैं, because institute has definitely raised the standard as far as company law is concerned. If you are an executive, old syllabus, new syllabus, professional, old syllabus, new syllabus, hardly matters sir, because company law paper will definitely be of high quality and examiner and institute will definitely expect very good level of knowledge. I hope you will be benefited with this video. Thanks for watching. Stay connected, stay blessed. If you have any doubt regarding this paper, and if you have any doubts, do give a comment, do give a thumbs up if you like this video, do share and subscribe, because a lot of more videos are coming for you in December exams. Thanks for watching. Stay connected, stay blessed. Jai Hind.